Single cell protein. Single cell proteins are unicellular or filamentous microbes which are obtained from pure or mixed culture. They are edible microbes. Now, what is the need of a single cell protein? Single cell protein like yeast were used as animal feed, but after the two world war there was a shortage of food faced by the countries participating in war. According to a FAO study, it was found that 25% of the world population suffered from protein deficiency. तो जर्मनी में फेड बैच रिएक्टर जो इन्वेंट किया गया, they started using brewer's yeast as a single cell protein. Single cell protein was also used by the Soviet as well as the United States of America as a source of protein and vitamin. Britain में British Petroleum, they started using the oil refinery waste like paraffins to feed the yeast. And the scientists Champagnat own UNESCO Peace Prize for this very use of waste products to grow single cell proteins. Hello friends, I am Ayantika, and in this video I'll be discussing about various organisms that are used as single cell protein. What are the various single cell use of single cell protein? Available commercial strains, comparative account of single cell protein with the industrial agriculture. What are the advantages and disadvantages of using single cell protein as food and feed? And the process of production of single cell protein, right from the media preparation, the substrate use, fermentation, downstream processing, post-harvest treatment. What are the genetically modified single cell protein used these days, and the industrial production. सिंगल सेल प्रोटीन्स में एल्गी में जो मोस्ट पॉपुलरली कल्टिवेटेड सिंगल सेल प्रोटीन वो है स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला. ईस्ट कैंडिडा यूटिलिस, सैकरोमाइसिस सेरेविसी, पीशिया पैस्टोरालिस, जियोट्राइकम कैंडिडम. फंजाई में हम यूज करते हैं फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम, फ्यूसेरियम वेनिनेटम, जो कि ट्रेड नेम है कोरम, that is used as a meat supplement. It is actually a vegan supplement for meat, any form of meat. So Aspergillus oryzae, Sclerotium ralphsi, Polyporus, जो कि एक food digesting fungi है, that is it can grow on cellulose, lignocellulose, Trichoderma. बैक्टीरिया में मोस्टली we use Methylophilus methylotropus and Rhodobacter capsulatus. अब Methylophilus methylotrophus जो बैक्टीरिया है, it can use methane and make its it can grow on methane. So methane, as we know, it's a greenhouse gas, so we can see that this bacteria can both be used for bioremediation of methane as well as production various SCPs and their use. जो एल्गल SCPs है वो मोस्टली एनिमल फीड का यूज होता ही था. लेटर ऑन वी स्टार्टेड यूजिंग एज फूड कलरेंट एंड फूड सप्लीमेंट, जो कि आइदर स्पेसिफिक नीड्स के लिए बना होता है. जस्ट लाइक वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विल बी टेकिंग द पर्टिकुलर फूड सप्लीमेंट्स. वी हैव कैरोटीनॉइड, विटामिन एंड प्रोटीन फूड सप्लीमेंट्स आल्सो फ्रॉम एल्गी. Fungi is mostly used as animal feed, but ये food और beverage in processing industry में भी काफी use होता है. Fusarium venenatum जो है, that is goes under the trade name of corum, is a meat supplement. Single cell from bacteria is mostly used as an animal feed. What are the uses of single cell protein? Single cell protein
बहुत ही प्रोटीन और विटामिन रिच है, बट इट इज लो ऑन द लिपिड प्रोफाइल. इट हैज लो लिपिड बट हाई इन प्रोटीन. और ये मोस्टली एज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स. पर ये कभी कभी जैसे ईस्ट is used to in other food processing industries like to prepare bread, pasta, yogurt, ice cream. Mostly पहले in the very early time it was used, it was mostly researched and in use in the European countries, but later on developing countries like Thailand, Mexico, इसमें भी हम लोग कल्चर देखा गया. And mostly SCPs are used to फाइट अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन. जो अंडर नॉरिशमेंट है उसको फाइट करते हैं हम अफ्रीकन कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक मैक्सिको. It can also be used as a feed in poultry, cattle and fish culture. कुछ SCP products जैसे squalene can be used as a beauty product also. SCPs, as it is rich in protein and vitamin, very low in fat and also has good अगर algae based है तो it is very good in fiber also. So ये diabetic, obese या जिनकी lipid profile खराब है इसके लिए बहुत ही अच्छा food supplement. And also it is rich in proteins that are low in sulfur. और ये बायोरिमेडिएशन जो के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको यूज करके ये अपना बायोमास बनाता है. तो एक तो वेस्ट प्रोडक्ट की भी यूज हो गई एंड सिंगल सेल जो प्रोटीन है वो भी वी कैन ऑब्टेन. सो इट गेट टू थिंग्स डन इन वन गो. पर एक मेजर ड्रॉबैक है कि अगर कंटेमिनेशन हो जाता है तो आइदर इसकी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है या टॉक्सिसिटी हो सकती है या कार्सिनोजेनिक हो सकता है, मतलब कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है. अवेलेबल कमर्शियल एससीपीज कौन कौन सी है? स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डुनालिएला, एफानोजोमेनन, यूग्लिना ग्रासिलिस, फ्यूजेरियम venenatum, Saccharomyces cerevisiae, which goes by the name of Marmite, Vegemite, Xenophis, Vitamar. These are actually spread used on bread and from the yeast extract of Saccharomyces. Criteria for selection of microbe for SCP. SCP के लिए हम वही माइक्रोब यूज करते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और प्रोटीन कंटेंट भी हाई क्वालिटी प्रोटीन, मतलब जिसकी अमाइनो एसिड्स मोस्टली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो है जो कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता एंड वी हैव टू टेक इट फ्रॉम अदर सोर्स इन आवर डाइट. ऑल्सो SCPs जो है वो विटामिन रिच होना चाहिए और उसकी न्यूक्लिक एसिड कंटेंट कम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड कंटेंट उसकी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, अल्टीमेट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है यूरिक एसिड. दैट इन ब्लड इफ प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन विल क्रिएट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लाइक गाउट हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है. और ऐसा SCP हमको सिलेक्ट करना है जिनमें कोई कार्सिनोजेनिक, पैथोजेनिक या एलर्जेनिक इफेक्ट ना हो, जिसकी कॉस्ट भी कम हो और जनरेशन टाइम, मतलब एक जनरेशन होने में टाइम कम से कम लगना चाहिए. और ये टॉलरेंट हो टेम्परेचर और pH की थोड़ा बहुत फर्क से. एंड इट शुड बी ऑल्सो वेरी इजीली अवेलेबल. Comparative account between industrial agriculture and single cell protein. Industrial agriculture क्या है? Intensive vegetation या grain production या intensive farming. इसमें क्या है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड में अगर हम 3 फसल उगाते हैं पर ईयर, सो वाटर कंजम्पशन विल बी वेरी हाई. ऑल्सो अगर लाइफ स्टॉक फार्मिंग उसमें भी वाटर कंजम्पशन ज़्यादा रहता है कंपेयर्ड टू सिंगल सेल प्रोटीन. ऑल्सो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में हमको बेस्ट क्वालिटी लैंड चाहिए फॉर
इंटेंसिव एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए एनिमल फार्मिंग के लिए भी हाई क्वालिटी ग्रासलैंड्स चाहिए. So these piece of land gets converted into wasteland because nutrient depletion हो जाता है if you use it intensively. So these wastelands, marginal lands, can be then used for the production of single cell proteins. जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर रहता है इसमें द पीस ऑफ लैंड दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, पहले तो उस लैंड की और उसके सराउंडिंग लैंड की प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, जो कि एक इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. लेकिन सिंगल सेल प्रोटीन अगर हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग ओनली एग्रीकल्चरल वेस्टलैंड और मार्जिनल लैंड वेयर बायोडाइवर्सिटी इज ऑलरेडी लॉस्ट. सो कोई एडिशनल बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होने वाली. और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में जैसे मोस्टली फार्मिंग में, एनिमल फार्मिंग में लाइफ स्टॉक जनरली जैसे काउ बफेलो हो गया, दे रिलीजेस मीथेन. But on the other hand, single cell proteins can grow on carbon dioxide and methane. So basically, they are taking up the greenhouse gas for the production of their own biomass. Basically, we can help reduce the global warming as well as the ओजोन होल की जो क्रिएशन वो भी रोक सकते हैं if we switch on to single cell protein production. इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो लाइफ स्टॉक या क्रॉप मैच्योरिटी के लिए मिनिमम 3 मंथ या 1 मंथ लग ही जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप और एनिमल. बट सिंगल सेल प्रोटीन की जनरेशन टाइम बहुत ही कम होता है. जैसे फॉर एल्गी इट इज 2 to 6 आवर्स, फॉर ईस्ट इट इज 1 to 3 आवर्स. बैक्टीरिया की तो और भी कम है, से हाफ एन आवर टू 2 आवर्स में इसकी शॉर्ट जनरेशन टाइम है. इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम पोर्शन इज नॉट एडिबल. लाइक fruit crop, only the fruit is edible. If grains, only the grain portion is edible. Say if it is a livestock, not all portion of the livestock is edible. But single cell protein comparatively, इसकी protein body portion मैक्सिमली एक सिंगल सेल है. तो हम मैक्सिमली अगर एनिमल फीड यूज करेंगे तो एनिमल फीड में तो कुछ नहीं निकाला जाता है, बट अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो हम न्यूक्लिक एसिड निकाल लेते हैं और मैक्सिमली कभी कभी सेल वॉल की पोर्शन भी निकाल लेते हैं. सो कंपैरेटिवली लॉस कम है, लॉस ऑफ बायोमास इज लेस इन सिंगल सेल. एडवांटेजेस क्या है? हाई सोलर एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी. मतलब क्या है कि जो सोलर एनर्जी इसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर, और क्योंकि इसकी जनरेशन टाइम भी कम है तो मोर अमाउंट ऑफ बायोमास इज प्रोड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू प्लांट्स. और क्योंकि ये बायोरिएक्टर या क्लोज्ड फोटो बायोरिएक्टर या क्लोज सिस्टम में होता है तो देयर इज नो सीजनल और क्लाइमेटिक वेरिएशन. और इसकी प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा है, इट इज़ एनरिच्ड इन विटामिन्स, और फैट कंटेंट कम है. सो इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मीट. और इसकी अमाइनो एसिड जो प्रोफाइल है वो भी एनिमल प्रोटीन जैसा ही है, मीन्स कि इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ज़्यादा रहता है in comparison to human, in comparison to plant protein. और क्या है कि इसको हम जेनेटिकली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. इफ़ वी आर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन तो हम वही सप्लीमेंट लेंगे जिसमें वो प्रोटीन डेफिशिएंसी हम दूर कर सकते हैं. एंड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, दिस माइक्रोब्स आर genetically manipulated. For that we can get tailor-made proteins for that. And by the cultivation of single cell protein we can reduce the global hunger both in animal feed level as well as for human consumption. The advantages of algae over other SCPs are that कि algae में न्यूक्लिक एसिड कंटेंट कम है इन कंपैरिजन टू अदर फंजाई एंड बैक्टीरिया, और इसकी प्रोटीन कंटेंट हाई है इन कंपैरिजन टू फंजाई एंड बैक्टीरिया.
इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है कंपैरिजन टू फंजाई एंड बैक्टीरिया। एंड इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि कंटामिनेशन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और इसकी जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल वो भी अच्छी है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड स्पेशली मेथियोनिन इन कंपैरिजन टू फंजाई एंड बैक्टीरिया। Advantages of fungi over other recipes. It produces vitamin B और इसके जो सेल वॉल है उसमें ग्लूकैन है which is a very good source of fiber. So it can be a very good recipe for those with having a cholesterol problem and diabetic person. इसकी जो कैंडिडा यूटिलिस है जिसकी which goes by the trade name of torula, it is used as a flavoring agent which has replaced the MSG. MSG जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इससे एक्चुअली चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम हो जाता है if we overuse MSG which is actually a metabolic breakdown जिसमें actually it is considered as a neurotoxin क्योंकि ये जो अपना नर्वस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम इफ वी यूज MSG. So this Candida utilis or torula is actually replacing MSG. एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरियल एससीपी, बैक्टीरिया में जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है कंपैरिजन टू एल्गी एंड फंजाई वो ज़्यादा है और मेथियोनिन कंटेंट विच इज़ एक्चुअली एन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो ज़्यादा है। इसकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो हेल्दी, मतलब इट प्रोड्यूसेस लेस LDL। बैक्टीरिया जो है some bacteria are diazotroph, that is it is fixing nitrogen and using it for production of its own biomass. डिसएडवांटेजेस क्या है एससीपी की? एससीपी जो एनिमल फीड क्वालिटी है वो एनिमल फीड ग्रेड एससीपीज आर वेरी इजी कॉस्ट इफेक्टिव, पर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है क्योंकि वी हैव टू रिमूव द अमाइनो एसिड कंटेंट, किसी में सेल वॉल की कंटेंट निकाल, सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और मैंने जो पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इफ वी प्रोड्यूस द ह्यूमन ग्रेड एससीपीज एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस। Also, the SCPs are produced in a very low concentration. क्यों? क्योंकि it is produced in a liquid media, तो we have to concentrate it. और अगर बैक्टीरिया या फंजाई वाला एससीपी है तो वी हैव टू हैव एडिशनल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द न्यूक्लिक एसिड। जो ईस्ट एंड फंगल प्रोटीन है उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कमी है। ऑल्सो एल्गी बेस्ड जो एससीपी है उसमें हम सेलुलोज को निकालना पड़ता है। कुछ एससीपीज में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाता है, तो अगर कंटेमिनेशन हो गया तो माइकोटॉक्सिन या फाइकोटॉक्सिन भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दीज आर ऑल एससीपीज माइक्रोब्स आर good accumulator of heavy metal. Heavy metal ऐसे it's if used in small amount body में इतना harm नहीं होता है, लेकिन if it is actually a accumulative poison. एक threshold cross जाने के बाद it creates metabolic breakdown in multiple organs. So we have to be very cautious about the strains we are using. और एससीपीज को हम मोस्टली यूज करते हैं शॉर्ट लाइफ मोनोगैस्ट्रिक हर्बिवोर के लिए, मतलब जो जैसे खरगोश हो गया, बट वी कैन नॉट यूज इट फॉर काउ बफेलो व्हिच हैव पॉलीगैस्ट्रिक स्टोमक। कभी कभी एससीपी में अनप्लेजेंट ऑर्डर और कलर भी आ जाता है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन। The conditions used for cell growth are substrate medium, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच और डिजोल्व ऑक्सीजन भी मेंटेन करना है। प्रिपरेशन ऑफ मीडिया में क्या चाहिए हमको? कार्बन सॉल्ट, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, मिनरल सॉल्ट और ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए। अब सबस्ट्रेट में मोस्टली वी यूज ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, स्मोक स्टैक से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे कोई बगासी
अदर मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे बगासी, पेपर इंडस्ट्री के लिए जैसे सेलुलोज, लिग्निन या सल्फाइड बेस्ड वेस्ट, पेट्रोलियम कंपनी की जो वेस्ट है, एल्केन्स है, वो सब। देन substrates जो organisms that prefer which substrates, like alkane preferring yeast जो है वो है Saccharomyces candida। जो शॉर्ट एल्केन प्रेफरिंग है वो है यारोलिया लिपोलाइटिका। मीथेन प्रेफरिंग जो बैक्टीरियाज है वो है मिथाइलोकोकस कैप्सुलेटस, मिथाइलोमोनस मिथानिका, मिथाइलोविब्रियो शोएंजी, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस। ये मोस्टली क्या करते हैं, मीथेन को मिथानॉल में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ कुछ बैक्टीरिया है ये मिथानॉल को एज ए सबस्ट्रेट यूज करके फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड तैयार करते हैं। मिथानॉल प्रेफरिंग बैक्टीरिया आर मिथाइनोबैक्टर, आर्थ्रोबैक्टर, बैसिलस, विब्रियो स्यूडोमोनास। मीथेन प्रेफरिंग yeasts are Candida boydini, Hansuela polymorpha, Toreolopsis glabrata। मिथानॉल प्रेफरिंग जो फंजाई है वो क्या है, ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम, क्लियोक्लैडियम डेलिक्वेसंस, कोमा गैटिला पेस्टोरालिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेफरिंग एल्गी है वो क्लोरेला सेनेस्टेस्मोस। सेलुलोज बेस्ड जो वेस्ट है वो प्रेफर करते हैं सेलुलोमोनास, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम। सल्फाइड बेस्ड जो पेपर इंडस्ट्री की वेस्ट है वो उसको प्रेफर करते हैं जो फंजाई, वो है कैंडिडा यूटिलिस, कैंडिडा ट्रोपिकलिस, टेलोमाइसिटिस वरियोटी। शुगर केन बगासी प्रेफरिंग फंजाई इज पेनिसिलियम, जेनिथेलियम। मोलासेस प्रेफरिंग ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेपिसी। वे जो कि पनीर जो वेस्ट वाटर रहता है वो प्रेफरिंग फंजाई है क्लाइवेरोमाइसिस फ्रेजिलिस। जो स्पेंड ब्रूअर्स ग्रेन है, ब्रूअर्स ईस्ट जो वाला जो स्पेंड ग्रेन है उसको प्रेफर करते हैं डिबारियोमाइसिस हैंसी, क्लूवेरोमाइसिस मैक्सिनस। वेजिटेबल पील प्रेफरिंग फंजाई है क्लूवेरोमाइसिस मैक्सिनस, Aspergillus niger। Vegetable peel preferring bacteria Bacillus licheniformis। Waste water preferring bacteria है Rhodopseudomonas palustris। अब फेड बैच कल्चर में हम जनरली यूज करते हैं। व्हाट इज बैच कल्चर? बैच कल्चर में हम लोग करते हैं कि एक बार जो सबस्ट्रेट है उसको डाल के उसको क्लोज कर देते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द रिक्वायर्ड बायोमास। बट इन फेड बैच विच वी आर यूजिंग, वी आर आइदर फीडिंग द न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअसली स्लोली और फॉर डिसकंटिन्यूअसली इन स्टेजेस। कंटिन्यूअस बैच में हम कंटिन्यूअसली फीड करते हैं और कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा बायोमास निकालते भी जाते हैं। बट फेड बैच इज सेमी ओपन, मतलब थोड़ा न्यूट्रिएंट डालते जाते हैं लेकिन कंटिन्यूअस निकालते नहीं हैं। So here we get more high density biomass। और क्या है इसका in comparison to continuous fermentation इसकी contamination भी कम है और इसकी ये cost effective भी ज़्यादा है, पर ये थोड़ा ज़्यादा time consuming है। फेड बैच कल्चर करने के टाइम वी हैव टू मेंटेन constant temperature, pH and dissolved oxygen. Temperature we can measure it with thermometers. pH we have to maintain pH by buffering, or dissolved oxygen we have to maintain either by stirring or sparging air. फिर उसके बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू हार्वेस्ट इट बाय दीज प्रोसेसेस लाइक प्रेसिपिटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फ्लोटेशन, कोआगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन। कोआगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन में एक ही डिफरेंस है कि कोआगुलेशन में वी यूज सॉल्ट विच इज एक्चुअली चार्ज्ड प्रोडक्ट हो जाता है, और फ्लोक्यूलेशन में वी यूज दिस पॉलीमर एंड दिस इज विच इज नॉट चार्ज्ड। Then we have filtration with semi-permeable membrane. Then we use centrifugation. Then either we can also use HPLC, which again becomes very costly. फिर हार्वेस्टिंग के बाद we do cell lysis if we are using it for human feed. So इसमें हम यूज करते हैं either to hydrolyzing enzymes
या हम केमिकली इसको डिसरप्ट करते हैं विद डिटर्जेंट, और ऑस्मोलिटिकली हम डिसरप्ट करते हैं इन हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, और टेम्परेचर शॉक से भी हम सेल लाइसिस कर सकते हैं, या मैकेनिकल क्रैशिंग इन द मैकेनिकल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रशिंग, ग्राइंडिंग, प्रेशर होमोजेनाइजेशन एंड अल्ट्रासोनिकेशन। अल्ट्रासोनिकेशन मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड देके हम सेल लाइसिस करते हैं। Post harvesting, then we after harvesting, we remove the cell wall, and after removing cell wall we remove the nucleic acid. Nucleic acid can be removed either by enzymatic hydrolysis using RNA degrading enzyme, or alkaline hydrolysis also using RNA degrading enzyme but in a alkaline medium. फिर उसको हम डिहाइड्रेट करते हैं जो भी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है। डिहाइड्रेशन कैन बी आइदर डन बाय फ्रीज ड्राइंग, एयर ड्राइंग या क्रिस्टलाइजेशन। फिर जो प्रोडक्ट है उसको हम थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टोर करते हैं टू इंक्रीज इट्स शेल लाइफ। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सिंगल सेल प्रोटीन्स, जेनेटिकली हम क्या इसको बाय यूजिंग ऑफ क्रिस्पर कैस वी इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट, एंड कन्वेंशनल पुराने ज़माने में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता था, इससे इसके अगेंस्ट ये क्रिस्पर यूज़ करके हमको क्या मिलता है कि वी कैन डू जेनेटिक इंजीनियरिंग विदाउट यूजिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से क्या प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी एलर्जेनिक रिएक्शंस भी हो जाता था। DuPont, which has been using this genetically engineered yeasts for cattle feed by using bioethanol. Bioethanol is again produced from algae, and that is using bioethanol for cattle feed. जो Saccharomyces cerevisiae है उसको पहले से इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता था। अब कैंडिडा इंटरमीडिया की एक जीन है जो कि जाइलोस फर्मेंटेशन में हेल्पफुल है, उसको हम ऐड किए हैं इन Saccharomyces cerevisiae so that it can increase the range of substrates that the Saccharomyces cerevisiae can use for production of single cell protein. ऐसे ही हम SCPs को यूज कर सकते हैं for getting the particular proteins or vitamins we need, और इसकी टॉलरेंस लेवल फॉर pH और टेम्परेचर भी कभी कभी बढ़ जाता है if we use genetically modified SCPs. These are the industrial products that are used these are the industrially important SCPs. Alginone industry uses Euglena gracilis as SCP. Blue Biotech Intel GmbH uses spirulina and chlorella. और कैलिस्टा जो है वो स्पाइरुलिना को यूज करता है एज एन एनिमल फीड यूजिंग मीथेन गैस। लाइकवाइज स्पाइरुलिना और भी साइनोटेक कॉर्पोरेशन, अर्थराइज, पैरी न्यूट्राकेमिकल में भी यूज किया जाता है, एंड यूग्लिना इज यूज्ड बाय यूग्लिना को लिमिटेड इन जापान। लैलेम इंक यूज करता है कैंडिडा यूटिलिस टोरियुला। Tanshan Biotech uses Brewer's yeast as its SCP. Unilever uses Marmite, which is actually Brewer's yeast extract. Marmite, फिर Vegemite, these are all yeast extracts. Veggie Pharma uses SCP, which has high threonine level and is used as an animal feed. जो मार्लो फूड इंडस्ट्री है, इट यूजेस क्यूरॉन विच इज वेजिटेबल बेस्ड मीट सप्लीमेंट। जो स्क्वालिन है, दिस SCP is used as a in cosmetic industries, and Nucellus Inc uses makes this squalene, vitamin D, nutritional oil and protein flour from the fungi Yarovia. Thank you for watching this video. If you like, please share it and subscribe it. Thank you.